Hello, welcome to today's lecture. Today we will discuss the forces related to circular motion. We have already discussed Newton's laws of motion, all the three laws. We have seen laws in springs, we have seen the forces connected to the lift, the forces connected to the rocket propulsion and so on. And in the last lecture, we have seen the friction, that is also kind of force. Okay. Today we will discuss the forces related to circular motion. First we discuss centripetal force. Okay, now this is the diagram associated with this. Here, if anyone asks you what is centripetal force is a force acting on a body moving along a circular path with constant speed. Remember, centripetal force acts on a body when it is moving along a circular path with a constant speed. Here we can see speed remains constant, and secondly there is always some acceleration toward the center that we have discussed in previous chapters, where we have had the concept of centripetal acceleration. Here we are not to discuss acceleration because this chapter is laws of motion and we have to discuss kind of forces, and here we discuss the centripetal force. यहाँ पे centripetal force बोल रहे हैं, इसको अभिकेंद्र बल भी कहते हैं. इसके मतलब क्या है कि whenever something, जब भी कोई ऑब्जेक्ट की सर्कल में एक कांस्टेंट स्पीड से, एक कांस्टेंट चाल से, स्थिर चाल से अगर वो चक्कर लगाए किसी भी वृत्तीय पथ पे, एनी सर्कुलर पाथ में, तो क्या हो जाएगा, उस पे एक सेंटर की ओर फोर्स लगेगा. It always experiences a force acting toward the center of circular path, and that is called centripetal. Centripetal means towards the center. Okay, and how it is determined? It is determined by multiplying mass into centripetal acceleration. We have already determined in previous chapters what is centripetal acceleration. It is v square by r. Therefore, F is given by this. And we also know V equal to R omega. Therefore, F equal to N omega square R. These are the two things which we discuss, which we call as centripetal force. When we call centripetal force, sometimes we also heard the name of centrifugal force. कई कई जगह ऐसे भी होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बहुत ही काल्पनिक सिचुएशन में आता है. इट इज डेफिनेटली अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन वेयर वी यूज द टर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए व्हाट वी नीड, हमको क्या जानना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. तो नेक्स्ट वी डिस्कस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Frames of a reference. Okay. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये अगर हमको किसी जगह पूछना पड़े तो क्या है भैया. देखिए, आप एक घर में हैं, सपोज कर लीजिए यू आर इन ए हाउस,
और इन अ होम, इनफैक्ट इन योर होम। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप उस फ्रेम में आपको काउंट किया जाएगा। तो आपका जो रेफरेंस होगा, तो आपका रेफरेंस फ्रेम क्या होगा? आपका होम। आप जब स्कूल में बैठे होंगे तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? आपका स्कूल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनफैक्ट गिव यू द आइडिया with respect to idea about the situation, about a place with respect to which the motion of some object is counted. Well, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब ये बताया गया, ये जनरल क्लासिकल मैकेनिक्स से लेकर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स तक इसका दायरा चलता रहता है। तो जब हम लोग क्लासिकली देखते हैं तो वो न्यूटनियन फ्रेमवर्क में देखते हैं। तो न्यूटनियन फ्रेमवर्क में जो देखने वाला जो जिसमें न्यूटन्स के लॉ लगते हैं, उसको हम लोग एक जैसे फ्रेम कहते हैं। जिसमें न्यूटन्स के लॉ नहीं लगते उसका हम अलग टाइप के फ्रेम कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इट हैज टू कैटेगरी, inertial and non-inertial frame of reference. Frame of reference, जैसे नाम से मालूम होता है इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में जहां पर कि लॉ ऑफ इनर्शियल लागू होता है, दैट मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। That is that can be very easily followed in such kind of motion. That means if anything is stationary, that will continue to remain stationary. If anything is in motion, in uniform motion, then that will continue to move with uniform motion. That means the total resultant force on that body is always zero. It's always zero. And if we consider the earth could also be an example of inertial reference frame. All the measurements counted on earth will be considered to be counted in the inertial frame of reference, because we consider the earth as a stationary thing, and we also consider ourselves as stationary, although relativistically or with respect to others planet, with respect to sun, with respect to moon, it is in motion. तो उनके रेफरेंस में हम बात नहीं कर रहे, मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में। हम लोग कोई घर को घूमते हुए नहीं देखते, हम लोग को स्टेशनरी लगता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर हम लोग कोई भी चीज, अगर हम लोग किसी चीज में भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी है, अगर ये कोई सर्कुलर डिस्क है, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, मान लीजिए सपोज इट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट वो हमेशा उनके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू दिस एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ। इट does not follow Newton's laws of motion. It follows Newton's law. Newton's laws of motion. Specially first law से ही इसका नाम आया है, that is inertia. तो ये तो फॉलो करते हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं करते। इसके मतलब क्या है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को आप कैसे पहचानेंगे? इट इज अ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। तो इन जनरल हाउ वी एक्सप्लेन दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको ये समझने के लिए कह सकते हैं कि it is such a frame of reference which moves constantly with some acceleration with respect to an inertial frame of reference। यानी कि inertial frame of reference के रेस्पेक्ट में
वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। अब इसको एग्जांपल कैसे मानेंगे? आप लोग बस में बैठे हो, ड्राइवर बस चला रहा है, ओके, यू आर ऑल सिटिंग इन अ बस एंड ड्राइवर इज मूविंग on the bus. You are all in stationary state, and your motion with respect to outsider is the motion of the bus itself, nothing more. But जब बस अचानक वो लेफ्ट टर्न में, वो सर्कुलर टर्न में उनको मूव करना पड़ता है, ऐसे टर्न करना पड़ता है, तो इट इज एक्सपेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ रियल फोर्सेस क्या होता है कि आप हमेशा एक्सीलरेटेड टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू ऑलवेज distract yourself, you always move away from the center. अब हमेशा बाहर की ओर, खिड़की की तरफ आप गिरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि इस केस में क्या हो रहा है कि बस तो एक्सीलरेट कर रहा है, आप आपके स्टेट से रिस्पेक्ट में बस एक्सीलरेटिंग मोशन में है। अगर आप अपने आप को एक इनर्शियल फ्रेम में मानने चल रहे कि आप रुके तो रुके रहना पसंद करेंगे, चल रहे तो चलने की पोजीशन में रहो, तो इसके मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग थिंग, व्हाट इज द मेन थिंग? मेन थिंग इज दैट यू आर एक्टेड अपॉन बाय सम वर्चुअल फोर्स। कोई एक वर्चुअल फोर्स, आप एक्सीलरेशन को आप एक्सपीरियंस कर रहे, यू आर एक्सपीरियंसिंग एन एक्सीलरेशन, बट दैट एक्सीलरेशन is not due to a real force, but rather a pseudo force. It is a virtual force which we call as centrifugal force. इसको सूडो फोर्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो इस पर न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं करते, ये चीज। दूसरा क्या है, इस केस में क्या है कि बॉडी पर एक्चुअल जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है, दैट इज नॉट ड्यू टू एनी रियल फोर्स। एक्सीलरेशन इज नॉट ड्यू टू a real force, but a virtual or imaginary force, not imaginary but virtual or pseudo force. तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो यहाँ पर जो आदमी पीछे की तरफ झटक जाता है, बाहर की तरफ गिर जाते हैं, तो उस चीज को हम लोग कह देंगे कि ये है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इसमें क्या जो फोर्स लगता है, जो एक्सीलरेशन बॉडी का होता है, एक्सीलरेशन इज ड्यू टू अ रियल फोर्स। अब ये सोच के चले कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट को अगर बांध के आपने चला, उसमें रखा है किसी सर्कुलर पाथ में डिस्क पे, और ये डिस्क चल रहा है, यहाँ से ये बंधा हुआ है, तो इसको जो सेंटर की ओर जो फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका जो एक्सीलरेशन इसके कारण होगा, दैट इज अ रियल एक्सीलरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर इसको, अब ये समझ लीजिए कि कोई यहां से कोई देख रहा है तो उसका रेफरेंस अलग है, लेकिन कोई चलते हुए चीज से देख रहा है तो वो रेफरेंस, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो अगर ये रुका हुआ है एंड दैट इज मूविंग, तो दैट इज योर that this moving with constant acceleration, then that frame of reference, उस बॉडी का जो घूम चल रहा है तेजी से, एक एक्सीलरेटिंग मोशन चल रहा है जबकि ये रुके हुए, तो उसके हिसाब से जो करेंगे, इसके विथ रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड डिस्क, इफ वी कंसीडर द मोशन ऑफ एन एक्सीलरेटिंग बॉडी, then that accelerating the motion, that frame of that accelerating body will be your non-inertial frame of reference. तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक सिस्टम आपको समझ में आएगा, जो बाहर की तरफ लगता है, एक्चुअल फोर्स वो नहीं होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का फीलिंग होता है, और एंड दैट इज द फोर्स ड्यू टू विच दैट एक्सेलरेशन अपीयर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये बहुत काल्पनिक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ये समझ लीजिए कि ये एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। जैसे आपको घर से कोई ना चेक करके, कोई मूविंग कार से आपको चेक कर रहा है आपके गतिविधि को, मान लीजिए सपोज, तो वो वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कार के अंदर से जो आपको देख रहे हैं, दैट इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो आपको घर बैठे आपको देख रहे हैं, देन इट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके,
after discussing the centripetal and centrifugal forces, let us discuss something about the motion in vertical circle. देखिए अब जो है हम लोग अब देख रहे हैं कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल को देखने के लिए आप लोग हमेशा उस चीज़ को देखते हैं कि जब आप लोग मान लीजिए कि छत में पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि आपको ये देखना पड़ता है कि ऐसे ऐसे घुमा के आप लोग लंगर कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे करके एक पत्थर में धागा बांध के आप खींच देते हैं और पतंग को खींच ले आते नीचे छत से उसको लूट लेते। ये चलता, अभी तो उतना पतंगबाजी नहीं होता, बट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच यू हैव टू नो। अब हमने क्या की दिया कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, तो क्या ये हर सर्कुलर मोशन से ये अलग से एक है, ये नहीं मालूम है। देखिए मैं एक छोटा सा दिखाऊंगा, फिर बाद में मैं इसको स्लो मोशन भी बाद में आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इस चीज को। ये एक धागा है, धागा में एक बोल्ट बता हुआ है। अब इसको जब मैं घुमाऊंगा ऐसे तो यू कैन सी दिस इज टोटली, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्टिकल प्लेन में है। आप देख सकते हैं ये मोशन जो है वर्टिकल सर्कल में चल रहा है। इसका एक लोएस्ट पॉइंट भी होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट भी होगा, ठीक है। और हम लोग अलग अलग पॉइंट में देख रहे हैं। इसका हम इसका स्पीड कम भी कर सकते और ये भी कर सकते, स्पीड कम कर दिया, लेकिन स्पीड कम करते करते क्या ये लीनियर मोशन हो जाता है, ठीक है। हम इसका सीधा मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन और जनरल सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक तो बता दें, इसमें हर पॉइंट पे लीनियर स्पीड अलग अलग होता है। यहाँ पर लीनियर स्पीड को यू से दिखा, यहाँ पर वी से दिखा, यहाँ वी एच से दिखा है। आप देख सकते हैं हर जगह रेफरेंस, हर पॉइंट पे आपका लीनियर स्पीड बदल रहा है। ये लोएस्ट पॉइंट है एल एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट पी, एनी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ऐसा सर्किल है जिसका रेडियस हमने आर ले लिया, रेडियस इज आर, और यहाँ पर जो टेंशन इस समय धागे में जो है वो टी एल है। टी एल मीन टेंशन रिलेटेड टू द लोअर पॉइंट, lowest point, and TH is the tension in the string at highest point, and TP is the tension in the string at point P, ठीक है।
ओके, तो हम लोग को क्या ये टी एल को निकालना है और टी पी निकालना है, देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम मान के चलते कि इनिशियल पॉइंट पे एट पॉइंट एल इज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, एल इज द लोएस्ट पॉइंट एंड इट इज क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि इट इज इन द ग्राउंड लेवल। एक बात क्लियर हो गया। तो मैं इस पॉइंट के लिए लेके इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ not equation of motion but equation for force on L। इसमें क्या होगा, मेन फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा, m u स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू टेंशन TL माइनस mg। Here also we can resolve mg into two components. This is theta, this is also theta. This is mg's cos theta and this is mg sin theta. Okay. Now this mu square upon r equal to TL minus mg. That means TL equal to mu square upon r plus mg. This is your equation number 1. Okay, this is your equation number 1. Now but total energy at L, kinetic energy plus potential energy. Potential energy is 0, तो there is only kinetic energy। अब देख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट है, ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल में केवल इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mgh होता है, h ग्राउंड लेवल पे 0 होता है। तो ये आ गया, ठीक है। नाउ अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूंगा एट h, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे की ओर है, टेंशन भी नीचे की ओर है, mg भी नीचे की ओर है, लेकिन नेट फोर्स तो हमेशा आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। यहाँ पर हो जाएगा mvh स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू th प्लस mg। आपने देखा है कि सर्कुलर मोशन हम लोग मेंटेन किए थे, अभी आपको सर्कुलर मोशन करके भी दिखाया था। एक स्प्रिंग को छोटा सा एक स्क्रू से बांध के, तो उस समय हम लोगों ने क्या देखा कि जो है हाईएस्ट पॉइंट पे भी वो चलता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे, आप देखिएगा जब नीचे रहता है वो भारी लगता है, स्प्रिंग भारी लगता है, जैसे ऊपर जाते रहते वो हल्का महसूस होता है। तो मैं अगर ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन पहुंच जाऊं जिसमें सर्कुलर मोशन तो करे बट द स्प्रिंग इज वेरी वीक, वेरी स्लैक, बहुत ढीलापन उसमें आ जाए, लेकिन सर्कुलर मोशन मेंटेन रखे तब भी, तो ऐसे सिचुएशन में टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलमोस्ट 0। तब इस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, तब उसको VH ना कहकर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो मैं वही सिचुएशन देख रहा हूँ, इफ pH is very close to 0, string becomes slack, ये ढीलापन पड़ जाता है, तब क्या हो जाएगा, mvh स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू mg, जिससे vh इक्वल टू अंडर रूट gr। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
तो आपने देख लिया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग को हमको ये मान के चलेंगे VH इक्वल टू √GR, और लोएस्ट पॉइंट में तो हमको U मान के ही चल रहे थे। और टोटल एनर्जी हमने क्या देखा था, टोटल एनर्जी इज हाउ मच, टोटल एनर्जी इज हाफ mU²। क्लियर? देन हम लोग कुछ पोर्शन मिटा देंगे यहाँ पर। ओके, देन टोटल एनर्जी एट H हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी है, वो स्प्लिट भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि जमीन से काफी ऊंचाई पे है। R + R 2R डिस्टेंस 5 पे है, तो यहाँ पर तो हाफ m और VH² प्लस mg2r, यहाँ तक लिख दिया आपने। अब VH की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हाफ mgr प्लस mg2r। तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी आ गया आपका 5/2 mgr। ये है मान लीजिए आपका, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम conservation of energy, we have total energy at L equal to total energy at H. So half mU² equal to 5/2 mgr। इससे U आ गया √5gr। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 आ गया। यहाँ पर टोटल एनर्जी, टोटल वेलोसिटी, मेन वेलोसिटी U के वैल्यू आ गया 5gr। G कांस्टेंट है, R सर्कुलर पाथ के लिए कांस्टेंट है। तो इससे हम लोग अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, द टोटल we can determine the total tension or the net tension at the lowest point, which has to be highest point. From equation 1 and 4, from equations 1 and 4, we have total tension, the tension at the lowest point equal to mv² U² means 5gr upon r plus mg, that means 6 mg. Remember, at the lowest point the tension is highest and that is equal to 6 mg. एक बॉडी का जो वेट है उसको जब आप सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो आपसे उसका 6 टाइम्स हेवी लगता है एट द लोएस्ट पॉइंट। छोटा सा पत्थर को भी घुमाएंगे तो मान लीजिए 10 आपका 100 ग्राम का पत्थर है तो आप समझ लीजिए वो 60 ग्राम 600 ग्राम का दिखेगा, आधा किलो से भी ज़्यादा हेवी लगेगा जब वो सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। ये आ गया आपका दिस में, ठीक है। अब ये तो आपका पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। पी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, टेंशन निकालना है, तो हाउ वी डिटरमाइन टेंशन एट पॉइंट P? फॉर दैट वी हैव टू कीप दिस, बट रेस्ट ऑफ द थिंग वी कैन रिमूव। P इज एनी रेफरेंस पॉइंट, कोई भी एक गिवन पॉइंट है। तो मैं इसमें जब हम P की बात करेंगे, here the string makes an angle at P. The string makes an angle theta with the vertical.
वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं क्या इक्वेशन क्या बनता है। यहाँ वेलोसिटी आपने पहले ही कहा v, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि सेंटर की ओर लगेगा, टेंशन भी उधर की ओर है, तो टी पी माइनस here the weight is resolved into two component, mg is the weight, mg sin theta here, mg cos theta here, therefore Tp minus mg cos theta, and Tp comes out to be mv square upon r plus mg cos theta. I take it as point equation number 5. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पर v नहीं मालूम हमको, we don't know the value of v, we have to find out v first and then we find out this. Okay, in order to find this, again we will take the total energy at p equal to kinetic energy plus potential energy half mv square mgh. From the diagram, h is very clear, it is r minus r cos theta, mg r minus r cos theta. ये r माइनस r cos theta क्या होगा, तो फिर इतना पूरा r है और ये इतना पोर्शन हो जाएगा r cos theta. This portion is your r cos theta. Okay, and therefore r minus r cos theta, and from the conservation of energy we have total energy at P equal to total energy at L. तो यहाँ पर टोटल एनर्जी होगा और यहाँ पर दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी एट दिस इसमें दे ही रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर का जगह 5gr। तो अब इसको बहुत ध्यान से एम एन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा इक्वल तो हो जाएगा 5/2gr। इनको जब उधर ले आएंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3/2gr माइनस gr cos theta, इसको आप 2/2 भी कह सकते हैं, and this is your equation number 6. By this v square comes out to be 3gr 1 minus gr common 3 minus 2 cos theta. This is equation number 6. अब देखिए यहाँ पर v स्क्वायर आ जाएगा कितना है, gr 3 माइनस 2 cos थीटा। 2 cos थीटा कैसे आया, अब देखिए यहाँ पर 3gr है, यहाँ पर 2gr है, आपने केवल gr कॉमन ले लिया, वो 2 नीचे वाला सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू gr कॉमन, यहाँ पर 3 माइनस 2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 6 है। अब ये समझ v स्क्वायर आ गया तो इसके बाद सब कुछ आ गया। आपको निकालना क्या था, टेंशन एट रेफरेंस पॉइंट P, ये आपको निकालना था। ओके, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं। नाउ रिमेनिंग थिंग यू हैव टू रिमूव। Okay, now from equation 5 and 6, Tp equals to m v square means gr 3 minus 2 cos theta plus
there is something that is to be noted, that cos theta has to be replaced to that side, okay, because we have to have this will be plus, this will be plus, yes, and then mgr upon r 3 plus 2 cos theta, it is referring from this side, m v स्क्वायर की जगह आपने ये लिख दिया और नीचे r है और यहाँ पर mg cos theta है, then this r cancel out, mg 3 plus 2 cos theta plus mg cos theta, अब cos theta एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3mg plus 2mg cos theta plus mg cos theta, that means 3mg, यहाँ पर भी 3mg आ जाएगा लेकिन cos theta के साथ 3mg taken common 1 plus cos theta. This is tension at point P. The reference point tension is this. Always remember, when we have lower half of the circle, then the tension is very high. Highest is at the lowest point, and as we move up, then tension is gradually decreased. It is no longer 600. Here you can see it is this much. And remember, if at the lowest point, if we take the theta comes out to be 0. यही पॉइंट अगर ऐसे करते करते मैं यहाँ ले आऊँ तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर cos थीटा इज 1, तो 1 plus 1 2, तो फिर वही 6 mg आ जाएगा लोएस्ट पॉइंट पे. अब यही समझ लीजिए कि इसको आप करते 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 ऊपर ले गए, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे ले आए, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री. यही थीटा जो यहाँ पे था ये धीरे धीरे ये 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर ले आएंगे तो थीटा कम्स आउट टू बी 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स जब आप आपको यहाँ पर रखेंगे तो cos 180 इज -1, -1 1 0, तो यहाँ पर टेंशन क्या आ जाएगा 0. यहाँ पर देखिए दिख रहा है 0. अगर इस चीज का सेंटर पे यहाँ पर काउंट करते हैं, when it is exactly at the right angle point like this, then theta is 90 degree. Again it is 0. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा, यहाँ से आधे रास्ते पे आते आते टेंशन आधे हो जाते, ऊपर जाते आते बिल्कुल 0. It is very clear that the lowest point the tension in the string is maximum as it is moving upward in the vertical circle, it reduces. Exactly at halfway it becomes half of the lowest point. Whatever was at lowest point it becomes just half. यहाँ पर 6 mg था, यहाँ पर 3 mg हो जाएगा. Exactly at highest point it becomes 0, because हम लोग ऑलरेडी क्रिटिकल स्टेट को लेकर चल रहे, सर्कुलर मोशन चालू किया, लेकिन वहां पर हमारा वेलोसिटी मिनिमम है क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी से चल रहा है. अब इसी चीज को जितना भी मैंने बता दिया इसका थ्योरी पूरा खत्म हो गया. अब इसी चीज को अगर हमको प्रैक्टिकल दिखाना है तो वो मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ. अब जरा देखिए. You have seen that vertical circular motion in slow motion, and with that we have completed this part of the chapter, and next time we will discuss also some very important thing like banking of road or leaning of bicycle, etc. Okay, so that the entire chapter will finish by that time, and with that it is all over, and thanks for watching. Thank you.